So what we have seen in last lecture, let us will try to revise that first, then we will continue with today's lecture. So guys, first tell me, am I audible? Yes, sir. Okay, thank Yes, you. sir. Yes, Yes, sir. sir. Wow, good. Means people are listening to me. So this we have seen in last lecture, continuous happiness and prosperity. We have seen more about it, right? So three basic requirements: right understanding, relationship, and physical facility. That too again in correct order. Getting it? So first you should have a right understanding about physical and relational requirements, relationship requirements. Then you must have a relationship, and third you should give physical facility. Okay, these three are the basic requirements, but in right order. Okay, then we have seen what is SVDD, SSDD, SSSS. Okay, so currently we are majority of we are in first two phases. We need to get to the third phase, Sadhan Sampanna Sukhi Samriddha. Getting it? So we need to reach to this one. Okay. Now let us will go ahead with further part. Then what we dealt with is this: if these three will miss or we will alter their order. अगर हम तीनों में से किसी एक को मिस कर देते हैं या फिर हम किसी की ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि मतलब फिजिकल फैसिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद राइट अंडरस्टैंडिंग, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना. सो वो गड़बड़ क्या हुई, एक गड़बड़ यहाँ पे हमने लिखा है. गेटिंग? सो व्हाट विल हैपन इज, सो वी मे बी facing these issues like getting irritated, angry, continuously fighting with the relations, with the people who are around us. Getting it? So why this happening? It's because of lack of human consciousness. And human consciousness means knowing these three in right order, following these three in right order. That is called as human consciousness. Okay, then we have seen this one. So what is this? That physical facility for animals, only physical facility is necessary and adequate. Okay, एनिमल्स के लिए अगर सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज मिलती है तो वो खुश रहता है. उनकी फिजिकल फैसिलिटी क्या होती है ना, खाना है ना, सिर्फ खाना है, सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, बस 10 खत्म. उनको कोई रिलेशंस की जरूरत नहीं है. दे डोंट नीड द रिलेशंस. गेटिंग? फॉर एनिमल्स. And for human beings, only physical facility is not enough. They need relationship as well. Getting it? उनको ये दोनों चीजें चाहिए. Relationship also they need and physical facility also they need for human beings. And above these two, there must be a right understanding. Okay. Then we discussed this. We started with this point and we ended the lecture. And so we will go ahead with this part once again. So what is this? Just know your understanding, just to know your understanding about being in relationship is naturally acceptable. उसके लिए हमने समाज में, हमारे समाज में जो तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं, तीन प्रकार की विचारधारा, सो उनको यहाँ पे रखा है. पहली विचारधारा, यू वांट टू लिव इन अ रिलेशनशिप इन हार्मनी विथ अदर्स. आपको दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ खुश रहना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ खुशी बांटना अच्छा लगता है ना. दिस इज यू वांट टू लिव इन रिलेशनशिप इन हार्मनी विथ अदर्स. दूसरी विचारधारा है, यू वांट टू लिव इन अपोजिशन विथ अदर्स. कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा अपोजिशन में जाना चाहते हैं ना, कोई कुछ भी बात रखे तो हम उसे क्या कहते हैं, दोस पीपल अपोज इट. ठीक है, किसी भी बात को हम अपोज करते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में हमें सब कुछ चाहिए, वी वांट एवरीथिंग बट वी प्रोटेस्ट फॉर एवरीथिंग. हमें सब कुछ चाहिए और हम सब के लिए प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना. जैसे कि यार हमें तो सुपर फास्ट हाईवेज भी चाहिए, उसके साथ हमें पेड़ पौधे भी चाहिए. We cannot say that trees should be cut and highways should be built. We say highways must be there. At the same time, we say trees should not be cut. This will not happen, है ना. So this was just an example, not 100% relevant with this. Example है लेकिन पूरी तरह से इसके लिए relevant नहीं है. ठीक है, so leave that. So this one, you want to live in opposition with other. कुछ लोग जो होते हैं ना, उन्हें opposition में रहना पसंद है, हमेशा अपोज करना पसंद है. और तीसरी कैटेगरी जो है, जो क्या चाहते हैं, वो ऐसा बिलीव करते हैं, लिविंग हैज टू बी नेसेसरली इन अपोजिशन.
अपोजिशन में रहना ही जरूरी है, जो ये मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, गेटिंग इट, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो इनकी विचारधारा है। वो सोचते हैं कि जो फिट है, जो स्ट्रांग है, वही सर्वाइव करेगा। इसका दूसरा अर्थ ये होता है, जो वीक होगा, जो वीक होगा, जो फिट नहीं होगा, वो आउट हो जाएगा, गेटिंग इट, वो आउट हो जाएगा। जैसे कि जंगल में होता है ना, शेर होता है, वो खरगोश को खा जाता है, क्योंकि खरगोश इज नॉट फिट, गेटिंग इट, ही इज नॉट दैट स्ट्रांग, सो टाइगर इज स्ट्रांग, सो ही विल ओनली हैव द राइट टू लिव इन फॉरेस्ट। सिर्फ उसी को जंगल में रहने की क्या अधिकार है ना, जंगल का कानून वैसा है। सो बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये दो कैटेगरी में भी है आजकल, है ना। Nowadays people are lying in these two category also। इसमें कौन से कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं ना, जैसे कि हमने कहा था, जिनको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसके बारे में राइट अंडरस्टैंड नहीं है? फिजिकल नीड्स के बारे में, फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में, जिन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि और चाहते हैं, और ज्यादा चाहते हैं, मुझे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। वो लोग ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वो हमेशा अपोजिशन में रहना चाहते हैं। सर, वो हाँ बोलिए। मराठी वापराय सर थोडं. हा, मराठी वापरा म्हणलो. बर 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 बर, ठीक आहे ठीक आहे. ते पूर्ण हिंदीमुळे थोडं कन्फ्युज होतंय दुसरं. बर बर बर, वापरूया. साकिब, थोडासा मराठी यूज करूंगा. हाँ ओके सर. हाँ ओके, कोई बात नहीं सर. हाँ ठीक है ठीक है. चलिए, कौन सी बात कर रहे थे हम यार? हाँ, तीसरे मुद्दे पे बात कर रहे थे हम, चलेंगे. तर तिसरा मुद्दा काय आहे? तिसरा मुद्दा क्या आहे हमारा, की स्ट्रगल फॉर सर्वायवल. काय म्हणतात लोक, की आपल्याला जर जगायचं असेल तर आपण दुसऱ्यावरती डॉमिनन्स केला पाहिजे. डेडिकेट आपल्याला शिकवलं पण तसंच जातं. दीपाली पोद्दार इज सेइंग आय एम नॉट ऑडिबल. एम आय ऑडिबल? Yes sir. Yes. हो सर. ओके, येते सर थँक ऐकू. यू. दीपाली प्लीज चेक युअर नेटवर्क, देर मे बी सम इश्यू. ओके, आपल्या मराठीत म्हणतो आपण, आपल्या लहानपणापासून ते शिकवलं गेलंय. काय शिकवलं गेलंय? तुझा पहिलाच नंबर आला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय काय जण काय करतात, काय जण काय करतात, आपला मित्र विचारतो किती चॅप्टर झाले वाचून, आपण काय म्हणतो, अरे काहीच अभ्यास झाला नाही, एकच चॅप्टर झालाय. झालेलं किती असतंय? गेटिंग इट. जरी माझं पूर्ण अभ्यास झाला असेल तरी मी मित्राला काय सांगतो, माझा अभ्यास झालेला नाही. का झालेला नाही? का सांगता तुम्ही तसं? व्हाय यू से दॅट वे? का बरं? कारण त्याला माझ्यापेक्षा जास्त जर मार्क पडले तर माझा अवघड होईल. गेटिंग इट. सो एवरीवन हैज दिस फीलिंग. हर एक के पास ये फीलिंग है. क्या फीलिंग है? कि अगर मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा मार्क्स मिल गए तो मेरा क्या होगा? गेटिंग इट. यस, ये थर्ड कैटेगरी है. गेटिंग इट, ये है थर्ड कैटेगरी. सो हर एक में है ये. एव्हरीवन हॅज दिस स्मॉल. हर एक के बीच में, प्रत्येकाजवळ हे थोड्या प्रमाणात आहे. एव्हरीवन हॅज दिस सॉर्ट. गेटिंग इट. ज्याला काय वाटतंय की यार तो जर पुढे गेला तर माझा अवघड होईल, अगर वो आगे चला गया तो मेरा क्या होगा? गेटिंग इट. अगर उसको पता चल गया कि मैंने इतना स्टडी किया है, अगर उसे पता चल गया कि मेरा एक रिवीजन हो गया, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा स्पीड से स्टडी करेगा. गेटिंग इट. अगर हमारे पास कोई अच्छे से नोट्स आते हैं तो हम सबको नहीं देते हैं. जो कोई बेस्ट फ्रेंड हो मैक्सिमम उसको देते हैं. वी डोंट शेयर विथ ऑल. गेटिंग इट. यही है, दिस इज द थर्ड कैटेगरी. ये है थर्ड कैटेगरी जो कि हमें नहीं चाहिए. वी शुड नॉट बी इन, वी शुड बी इन फर्स्ट कैटेगरी. हमें फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए. आपल्याला पहिल्या कॅटेगरीमध्ये यायचं आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप इन हार्मनी विथ अदर्स. सगळ्यांसोबत हार्मनीने राहायचं आहे. गेटिंग इट. या तिसऱ्याचा अर्थ कळाला का तुम्हाला? तिसऱ्याचा अर्थ फार महत्वाचा आहे. इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस की बाबा समोरच्याला मारूनच मी जगणार आहे. नाही, जे आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं एक्झामचं, की आपल्या प्रिपरेशनचं, ते देखील ह्या थर्ड कॅटेगरीमध्ये येतं. की ज्या वेळेस आपल्या मनात हा विचार येतो की समोरचा जर माझ्या पुढे गेला तर माझं कसं होणार, आय विल फेल, माझा पराभव होईल, ठीक आहे, मी कुठेतरी मागं पडेन,
हे जे फिलिंग आहे ना, हे सुद्धा थर्ड कॅटेगरी मध्ये येतं. कारण त्या फिलिंग मधून आपण काय करतो, समोरच्याला डिप्राईव्ह करायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, आपण असा प्रयत्न करतो की समोरचा खाली जाईल. वी ट्राई दिस. बनते पण ना, हमारे इंडिया में कहावत भी है ना, हम इंडियंस क्या करते हैं, दूसरे की टांग खींचते, एक दूसरे की टांग खींचते. दिस इज व्हाट द थर्ड कैटेगरी. Get it? But it is written in technical language. That is the only. चलो, so this was the third option. और हमें किस में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन में जाना है. So let us, role of education in development of human consciousness. Human consciousness मतलब क्या हमने देखा है, human consciousness means knowing three things in right order. Human consciousness means knowing three things in right order. Which things? Right understanding, relationship, physical facility. Okay, these three things in right understanding, knowing these three things means human consciousness. और how can we get human consciousness? कैसे आ सकता है, कसा मिळू शकतो आपल्याला ह्यूमन कॉन्शियसनेस? द रोल ऑफ एज्युकेशन. Education will help us to gain this human consciousness. Getting it? Human consciousness education से आएगा. So how? Let us see. दो प्रकार आते हैं, एक होता है एजुकेशन और दूसरा होता है संस्कार. जो हम कहते हैं एजुकेशन और संस्कार, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है? तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज डेवलपिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. गेटिंग इट? एजुकेशन इज डेवलपिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग. होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मीन्स सर्व समावेशक, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, काउंटिंग ऑल, सबको साथ लेके. दैट इज होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. होलिस्टिक मीन्स इंक्लूडिंग एव्हरीथिंग, सगळ्यांना सोबत घेऊन. करेक्ट? दैट इज होलिस्टिक. ये कौन डेवलप करता है? एजुकेशन. सेकंड इज संस्कार. संस्कार, व्हाट इज संस्कार? इट इज द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिव्हिंग विथ राइट अंडरस्टँडिंग. गेटिंग इट? म्हणजे थोडक्यात काय, फिजिक्स म्हणजे काय आहे? स्टडी ऑफ सायन्स. फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ सायन्स, and engineering means application of science. Getting it? Physics means science and engineering means application of science. उसी तरह से education is developing right understanding, means studying the right understanding, and संस्कार क्या है? practicing it. संस्कार काय आहे? ते राईट अंडरस्टँडिंग प्रॅक्टिस करायचं. म्हणजे काय करायचं? आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या लाईफ मध्ये इम्प्लिमेंट करायचं, त्याला म्हणायचं संस्कार. गेटिंग इट? दिस इज द डिफरेंस. एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, है ना. मैंने एनोलॉजी बताई आपको. एनोलॉजी, हाउ डिड आई टेल एनोलॉजी? लाइक अ फिजिक्स. फिजिक्स मध्ये आपण काय शिकतो? फिजिक्स मध्ये हम सीखते सायन्स. ठीक आहे? फिजिक्स मध्ये आपण शिकतो सायन्स, आणि इंजिनिअरिंग मध्ये काय करतो आपण? ते सायन्स अप्लाय करतो. वी अप्लाय द सायन्स. इन द सिमिलर वे एजुकेशन में क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और संस्कार में क्या आएगा? वो राइट अंडरस्टैंडिंग को हमें प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस मीन्स यूजिंग इट. टू प्रैक्टिस मीन्स टू यूज, टू अप्लाई, उसे कहेंगे प्रैक्टिस. जैसे कि डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, है ना. डॉक्टर ऑलवेज प्रैक्टिसेस. डॉक्टर लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं. हम कहते हैं ना डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू है. यस, सो इट इज प्रैक्टिस मीन्स अप्लाइंग. The preparation includes learning appropriate skills and technology. यहाँ का ये जो प्रिपरेशन वर्ड है ना, वो प्रिपरेशन वर्ड क्या होता है? इंक्लूड करता है लर्निंग एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. किसके लिए? टू प्रैक्टिस दिस राइट अंडरस्टैंडिंग. ओके, दिस वन आउटकम ऑफ ह्यूमन एजुकेशन और संस्कार. इसका आउटकम क्या होगा? सो इसका आउटकम ये होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. उभय समृद्धि. उभय मतलब बोथ, उभय सुख, उभय समृद्धि. उभय मीन्स म्यूचुअल, मीन्स बोथ, दोनों मिलके साथ में. गेटिंग इट? प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्ध होना, समृद्ध व्हायचं. गेटिंग इट? नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज समृद्ध एंड ऑल. सो पीपीटी यहीं तक है. सो आई विल ओपन दी नोट्स डायरेक्टली. कहां तक का पॉइंट कवर हुआ है? लास्ट पॉइंट शुरू है हमारा सिलेबस का, यहां से आगे. ठीक? एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये लास्ट पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर का. किसी का तो माइक ऑन है, किसका है?
I'm getting disturbance. No one? Okay, ठीक है. So let us will try to explore the meaning of happiness and prosperity. Happiness और prosperity का meaning देखते हैं. What is mean by happiness and prosperity? जैसे हमने चैप्टर के शुरुआत में हमने यही डिस्कस किया था, है ना? We started with the chapter with the same words, happiness and prosperity, and the complete entire chapter is moving around the same. हे पूरा चॅप्टर, हा पूर्ण चॅप्टर या दोन्हीच्या भोवतीच फिरतोय. कुठल्या दोन गोष्टी? हॅपीनेस आणि प्रॉस्पॅरिटी, आनंद आणि समृद्धी. ठीक आहे. तर आता हे आनंद म्हणजे नक्की काय, हॅपीनेस मतलब एक्झॅक्टली क्या है, प्रॉस्पॅरिटी समृद्धी म्हणजे नक्की काय, कसं डिफाईन करायचं ते आता आपण या इथं डिटेलमध्ये बघूया. ठीक. तर हॅपीनेस म्हणजे काय? द स्टेट ऑर सिच्युएशन इन विच आय लिव्ह इफ देअर इज हार्मनी. इथं आहे the state or situation in which I live, if there is harmony, synergy in it, is naturally acceptable to me to be in the state or situation. जर मी सध्या ज्या सिच्युएशन मध्ये आहे त्या सिच्युएशन मध्ये जर मला नॅचरल ऍक्सेप्टेबल आहे, म्हणजे ती सिच्युएशन मध्ये राहणं मला नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे, तर ती सिच्युएशन मला हॅपीनेस देतीये. गेटिंग इट? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही इथं लेक्चर मध्ये बसलाय, आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अगर ये आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो ही आप खुश रहोगे. गेटिंग इट? दिस इज द करंट स्टेट, करंट सिचुएशन. यू आर अटेंडिंग ए क्लास. गेटिंग इट? इफ अटेंडिंग अ क्लास इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. तभी आप खुश रहोगे, तभी आप हैप्पी रहोगे. If it is not naturally acceptable to you, then you will not be happy. तब बोर होगा, तब इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा. Getting it? This will happen. When this will happen? If you will not be, if you will be forced to be in state of disharmony, contradiction. कब गुस्सा आएगा? If you are forced to be in the state of disharmony, contradiction, तब आपको गुस्सा आएगा, तब आप अनहॅपी होगे. गेटिंग इट? मला इंजिनिअरिंगला जायचं नव्हतं, मला बळजबरी पाठवलंय. यस. व्हॉट इट विल डू? इट विल क्रिएट डिसहार्मनी. इट विल मेक यू अनहॅपी. सो व्हॉट इज द सोल्युशन? Verify engineering with your natural acceptance. Implement it. सीखो, इंजीनियरिंग सीखो, देखो, पढ़ो, 4 साल जाने दो. Then you think, is it naturally acceptable to you or not? अभी डिसीजन मत लो. Getting it? So this is what? Getting it? So what is this? Understood the meaning? Happiness means what? State or a situation in which I live. If there is harmony, if it is naturally acceptable to me, then that situation is happiness. Then that situation creates happiness. In short, we can say happiness is nothing but harmony. Getting it? Happiness का मतलब क्या है? Harmony. और उसके अपोजिट अनहैप्पीनेस, ये क्या है? ये डिसहार्मनी है. Getting it? विसंवाद. मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? विसंवाद. है ना? जेव्हा विसंवाद असेल त्यावेळेस unhappiness. Getting it? These things only are summarized here in this drawing, nothing else. वही लिखा है. The state or situation which I live, if there is harmony, synergy, then naturally acceptable, then I will be in happiness. If it is in contradiction, then if it is not naturally acceptable, then I will be unhappy. अब देखते हैं ये दो वर्ड्स. ये हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट सेम है क्या? ये हैप्पीनेस और ये एक्साइटमेंट, ये दो टर्म्स हैं, ये सेम है क्या? देखते हैं. देखिए, अगर हम पहली बार कोई चीज करने के जाते हैं, फर्स्ट टाइम वेन एवर वी ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग, गेटिंग इट? जैसे कि जब पहली बार लाइफ में पहली बार हमने मिर्ची देखी थी, हरी भरी मिर्ची, दिखने में बहुत खूबसूरत है मिर्ची, है ना? सो एक्साइटमेंट है यार, ये हाउ इट विल टेस्ट. देखिए ना, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा 2 साल का, उसको मिर्ची की टेस्ट पता नहीं, त्याला अजून मिर्चीची चव माहित नाही. 2 साल के बच्चे को मिर्ची की टेस्ट अभी तक पता नहीं, उसको हरी मिर्च दिखाओ, ही विल बी वेरी हैप्पी. ओ हाउ मच, हाउ स्वीट इट इज.
So he is excited. Getting it? He is not happy. Remember, he is excited to test that thing. उसे मिर्च खाने की क्या है? एक्साइटमेंट है. वो कैसी है? टेम्पररी है. अगर वो उस मिर्च को टेस्ट करेगा, so his happiness will lose. Getting it? उसकी हैप्पीनेस चली जाएगी. This is what. Getting it? जब हम पहली बार रोलर कोस्टर में बैठने के लिए जाएंगे, रोलर कोस्टर या इतना बडा. Getting it? रोलर कोस्टरला मराठीत काय म्हणतात माहित नाही. सो रोलर कोस्टर तुम्ही बघितलाय, पिक्चर मध्ये दिसतो, पिक्चर मध्ये असतो. Getting it? भरपूर पिक्चर मध्ये. मराठी म्हणलं माझा छोकुला पिक्चर मध्ये आहे. देन हिंदी मूवी आई डोंट नो एनीथिंग. हॉलीवुड मूवीज में बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कार्टून में भी होता है ना, रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर देखने में बहुत एक्साइटमेंट आती है, देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है. यस यार कितना मजा आएगा. और जब आप उसमें बैठेंगे, यू मे लूज द हैप्पीनेस, यू मे फियर, आपको डर लग सकता है. Getting it? You may lose your excitement. That's not the happiness, that is excitement. Getting it? So जब हम उसको पहली बार देखते हैं रोलर कोस्टर को, वो है फेवरेबल सेंसेशन. वो क्या है? फेवरेबल सेंसेशन. जैसे कि गर्मी में ठंडी हवा आती है, उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा गार हवेची झुळूक येते, त्यावेळेस काय होतं? छान वाटतं, फेवरेबल सेन्सेशन. पण तीच गार हवा जर 24 तास लागत राहिली, then you may lose happiness. You may lose, I'm saying. I'm not saying you will lose. You may lose. Getting it? Is the favorable feeling we get from the other. आता हे काय? फेवरेबल फिलिंग फ्रॉम अदर म्हणजे काय? दुसऱ्याने आपल्याला चांगली वागणूक दिली, माझ्याशी कोणतरी येऊन गोड बोलतंय, माझ्याशी कोणतरी येऊन चांगलं बोलतंय. समवन इज कमिंग टू मी एंड टॉकिंग टू मी वेरी स्वीट, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है. फेवरेबल फीलिंग. क्या वो हैप्पीनेस है? क्या पता आपके साथ वो प्यार से क्यों बात कर रहा है, उसे कुछ तो चाहिए होगा. Who knows? Getting it? This is excitement. But is it happiness? नहीं, वो happiness नहीं है. क्यों? Excitement is a temporary. Excitement क्या है? Short lived. छोटी देर के लिए होता है. Not sustainable. Life long के लिए नहीं है. Continued नहीं है. Excitement क्या है? छोटा सा happiness. Getting it? और happiness क्या है? So being in harmony continuously. Continuously being harmonious is called as happiness. Okay? So ये है happiness की definition. पहले तो हमने happiness की definition देखी, being in harmony is happiness. Then we have seen unhappiness, that is means disharmony. उसके बाद हमने देखा what we have seen, difference between happiness and excitement. Okay? So now we will go towards exploring the meaning of prosperity. What is mean by prosperity? So एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन किया गया है prosperity. देखिए क्या है. Prosperity is the feeling of having more than required physical facility. Getting it? Prosperity क्या है? What this prosperity is? Prosperity is the feeling of having more than required physical facility. अब required कितना है वो अलग बात है. Getting me? Getting what I'm saying? Prosperity is the feeling of having more than required physical facility. अब ये required physical facility किससे relate करेंगे हम? ये required physical facility है ना, ये हम इसके साथ relate करेंगे. We will relate it with right understanding. कहाँ गया वो? इसके साथ. Getting it? So सबसे पहले हमें क्या करना है? Right understanding से फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है खुद के लिए. Getting it? पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे? सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे की इथं प्रॉस्पेरिटीच्या मीनिंग मध्ये, प्रॉस्पेरिटीच्या डेफिनेशन कडे येताना इथं काय लिहिलेलं आहे? रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी. मला किती फिजिकल फॅसिलिटी लागणार आहेत, पण हे कसं ठरवणार आहे आपण? तर हे आपण याच्यातून ठरवणार आहे.
राईट अंडरस्टँडिंग. इथं ठरवणार आहे आपण फिजिकल फॅसिलिटी बद्दलचं राईट अंडरस्टँडिंग. गेटिंग इट. त्याचं कसं सांगू शकतो आपण की जसं मला किती ड्रेस हवे आहेत, मला 5 ड्रेस पाहिजेत, मला 10 ड्रेस पाहिजेत, मला 20 ड्रेस पाहिजेत, मला 50 ड्रेस पाहिजेत, किती ड्रेस पाहिजेत मला. रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी, हाऊ मेनी ड्रेसेस आय नीड. गेटिंग इट. So first you need to define it by using right understanding. By using right understanding, first you need to define what is your physical requirement, how much you need, how much you want. Getting it? उसके बाद having more आएगा. उसके बाद क्या आएगा? Having more, more than required. जितना जरूरी है पहले वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद आएगा हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड. ठीक, उसे कहेंगे प्रॉस्पेरिटी. अब ये देखिए, हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी ये हमेशा ट्रू नहीं होगा. उसके लिए उसकी क्या चाहिए? फीलिंग चाहिए. इट इज अ फीलिंग. हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड इज ए फीलिंग. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. याद रखिए, प्रैक्टिकली हैविंग मोर देन फिजिकल, हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए उसकी क्या चाहिए? फीलिंग. मुझे लगना चाहिए, आई मस्ट फील आई हैव मोर देन रिक्वायर्ड. अगर वो आएगा तो क्या कर सकेंगे हम देने के बारे में सोचेंगे. गेटिंग? इफ आई विल हैव एडिक्वेट देन एंड ओनली देन आई कैन थिंक ऑफ डोनेटिंग. हम डोनेशन के बारे में कब सोचते हैं? आपण दुसऱ्याला द्यायचा विचार कधी करतो? ज्यावेळेस आपल्याकडे पुरेसा आहे. गेटिंग इट? जर माझ्याकडे पुरेसा असेल त्याच वेळेस मी दुसऱ्याला देण्याचा विचार करतो. गेटिंग इट? जर माझ्या अकाउंटवर 10,000 असतील तरच मी कुणाला तरी 10 रुपये द्यायचा विचार करू शकेन. जर माझ्या अकाउंटवरच 10 रुपये आहेत तर माझ्या मनात येईल का 10 रुपये द्यायचा? नाही येणार. आय विल नॉट गेट दॅट फीलिंग. Getting it? So let us will see. There are two basic requirements. ये अचीव करने के लिए, to achieve this prosperity, ये prosperity achieve करने के लिए ये दो बातें जरूरी है. These two things are required. Which two things? The first one, right assessment of the need of physical facility. This we have seen here. Right understanding. This is right assessment. Rightly हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. What I need in physical facility. गेटिंग इट? ये पहिली बात वी डिस्कस्ड, हे पहिल्यांदा आपण डिस्कस केलं. आता दुसरी गोष्ट काय आहे? इन्शुरिंग द अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी. दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. यू नीड टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो. आपल्याला या गोष्टीवर पण काम करायचं आहे. मी माझी फिजिकल फॅसिलिटी डिफाईन केली. मला सपोज किती पाहिजेत? मला हॅपीनेस, मला समृद्ध वाटण्यासाठी, मला प्रॉस्पॅरिटी फील करण्यासाठी माझ्या अकाउंटवर 1 करोड रुपये पाहिजेत. नुसतं म्हणून भागणार आहे का? नाही. सिर्फ बोल के चलेगा क्या मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होंगे तो मैं प्रॉस्पैरिटी फील करूंगा? बोल के चलेगा क्या? नहीं. आई नीड टू वर्क ऑन प्रोड्यूसिंग दैट. मुझे वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा. आई नीड टू मेक दैट अवेलेबल. मुझे वो अवेलेबल करना पड़ेगा. आई नीड टू वर्क ऑन फॉर दैट. मुझे वो वर्कआउट करना पड़ेगा. वो वर्कआउट करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? आई नीड फिजिकल फैसिलिटीज. सॉरी, टू हैव द फिजिकल फैसिलिटीज व्हाट आई नीड टू हैव, मेरे पास क्या चाहिए? आई नीड स्किल, आई नीड नॉलेज. गेटिंग इट? हे मिळवण्यासाठी, काय मिळवण्यासाठी? जी मोर दॅन रिक्वायर्ड आहे, हे मोर दॅन रिक्वायर्ड मिळवण्यासाठी माझ्याकडे काय पाहिजेत? माझ्याकडे स्किल पाहिजेत. आय मस्ट हॅव दॅट स्किल टू अर्न दॅट. ते मिळवण्यासाठी माझ्याकडे स्किल पाहिजे. गेटिंग इट? सो दिस देखिए है भाई, हिंदी में भी लिखा है समृद्धि. समृद्धि मीन्स व्हाट? आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धता, उत्पादन का भाव. गेटिंग इट? So this is called as prosperity. Okay. So program for continued happiness. So here we have finished this chapter.
जो अभी हमने डिस्कस किया वो ही यहाँ पर नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड आई हैव सर्कुलेटेड दीज नोट्स विथ यू ऑल। मैंने ये नोट्स भी आपको सर्कुलेट किए हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स ओनली। वी डिस्कस्ड नीड फॉर व्हॅल्यू। नोट्स कधी पाठवले? ते आपल्या ह्याच्यात टाकलेत की आपला जो तुमचं शीट आहे की स्प्रेडशीट आहे ना, स्प्रेडशीट त्याच्यामध्ये टाकले की टीचिंग डायरी. टीचिंग डायरी करेक्ट, त्याच्यामध्ये टाकलंय मी हे. ह्या नोट्स आहेत, ह्या नोट्स मधलेच कंटेंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत. हाच तुमचा सिलेबस आहे. AICTE न डिफाईन केलेल्या नोट्स आहेत, एकदम स्टँडर्ड आहेत. गेटिंग इट? प्लस तोच सिलेबस आहे आणि तो आपला कव्हर झालेला आहे. पहिल्या चॅप्टर मधला पार्ट कव्हर झालेला आहे. एकदा नोट्स उघडा, व्यवस्थित वाचून घ्या. आता एक छोटीशी असाइनमेंट तुम्हाला मी सांगणार आहे. गेटिंग इट? सो आय एम गोइंग टू गिव्ह यू वन असाइनमेंट. So what is that assignment? You need to write the one complete page about, एक पूर्ण पान लिहायचं. पूर्ण म्हणजे पाठपोट, front and back, means I will explain this side of page and this side of page. This is one page. Getting it? So complete one page about the personality which inspired you. अशा एका पर्सनैलिटी बद्दल, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसने आपको इंस्पायर किया है, जिससे आप इंस्पायर हो चुके हो. ठीक है, ज्यांच्यापासून तुम्हाला इन्स्पिरेशन मिळालंय. यू गॉट इन्स्पिरेशन, है ना, फ्रॉम युअर फॅमिली. पण कुठला पाहिजे? तर तुमच्या फॅमिली मधला पाहिजे, तुमच्या रिलेटिव्ह मधला पाहिजे. गेटिंग इट? हे एक पेज. आणि इंग्रजीत काही हरकत नाही, मराठीत लिहिलं तरी चालेल, इंग्लिश मध्ये लिहिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. नो लँग्वेज बाइंडिंग. मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नो वरी, नथिंग टू वरी. इंग्लिश मध्ये लिहिले तर खूपच छान. जर इंग्लिश मध्ये नाही जमलं, राईट इन मराठी एज वेल, बट ऍटलीस्ट ट्राय टू राईट वन पॅराग्राफ इन इंग्लिश. ऍटलीस्ट सजेशन, प्रपोजल आहे माझं. गेटिंग इट? ऍटलीस्ट ट्राय टू राईट वन पॅराग्राफ इन इंग्लिश. जमला प्रयत्न करा, चुकला चुकू द्या, काय हरकत आहे. गेटिंग इट? बट उरलेलं तुमच्या लैंग्वेज में तुम्ही लिखू शकता, है ना. आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो. कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है? अबाउट दैट पर्सनैलिटी, व्हाई यू गॉट इंस्पायर्ड, आप उससे इंस्पायर क्यों हुए. गेटिंग इट? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एंड उससे जो इंस्पिरेशन मिला वो आपने कितने % इम्प्लिमेंट किया. तुम्ही ते किती टक्के इम्प्लिमेंट केलं. तुम्ही कोणाकडून तर इन्स्पिरेशन घेतलंय, पण ते तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट केलं का? केलं असेल तर लिहा, केलं नसेल तर कधी करणार ते लिहा. तुम्ही कधी ते इम्प्लिमेंट करणार आहे. मी वयाच्या 30व्या वर्षी करणार आहे, 25व्या वर्षी करणार आहे, 60व्या वर्षी करणार आहे, ते लिहा. कधी तुम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहे, काय इम्प्लिमेंट करणार आहे, त्याच्याकडून जे इन्स्पिरेशन घेतलंय त्याच्यानुसार तुमचे प्लॅनिंग काय आहे ते लिहा. गेट इट? बघा, वन पूर्ण पेज. जमलं तुम्हाला तर प्रयत्न करा, नाही जमलं तर ऍटलिस्ट एवढं तरी मला पाहिजे प्रत्येकाकडनं. वन साइड तरी कमीत कमी पाहिजेच. ठीक आहे. आता दुसरं, राईट वन कंप्लीट पेज अबाउट द पर्सनॅलिटी विच इन्स्पायर्ड यू अदर दॅन फॅमिली. म्हणजे इथं अदर दॅन फॅमिली, मग इथं कोण पण येऊ शकते. यहाँ पे कोई भी आ सकता है. यहाँ पे अब्दुल कलाम आ सकते हैं, महात्मा गांधी आ सकते हैं, कोई भी, एनी वन पर्सनैलिटी. वॉरेन बफेट भी आ सकते हैं यार, कोई भी आ सकता है. गेटिंग इट? सो एनी वन, कोई सचिन तेंदुलकर से भी कोई इंस्पायर हो सकता है. यू कैन, धोनी से भी कोई इंस्पायर हो सकता है, महेंद्र धोनी से. प्लस अदर देन फैमिली. लेकिन याद रखिए, आपको उसके साथ क्या लिखना है? विच क्वालिटीज इंस्पायर्ड यू and which qualities you are going to implement in your life and at what time, or if implemented how you have implemented. Getting it? So ये आपको लिखना है. This is our first assignment. ये है हमारी first assignment. Getting it?
अंडरस्टूड? ठीक है. सो लेक्चर इट इज लेस देन 1 मिनट इज रिमेन्ड. बोलिए. जे अब्सेंट आहेत त्यांना पण आता कसं सांगणार तुम्ही? मीच सांगतो. ओके, थँक यू गाईज. हॅव अ नाईस डे अहेड. विल ब्रेक हिअर. सर हा बोला. हे असाइनमेंट क्वेश्चन म्हणजे लिहिल्यानंतर नंतर काय करायचं याचं? लिहिल्यानंतर काय करायचं? फोटो काढायचा, मला पाठवून द्यायचं. माझा ठीक आहे. टेलिग्राम नंबर आहे की तुमच्याकडे? आहे ना? नाही सर. तेव्हा काही लिहायला लागलो मी. नाही सर. लिहायला लागलो. अरे कुठे गेला? अरे व्हाय दिस इज नॉट टाइपिंग हिअर. अरे यार.